I, on behalf of entire employed fraternities of Arunachal Pradesh, here come forward before the press fraternity and press friend, media friends, to acknowledge and to inform that the entire employees of the Arunachal Pradesh is going to participate the nationwide general strike being called by the All India State Government Employed Federation, AISGF. So, in this regard, the COSAP called a GBC meeting, that is General Body Council meeting, on 14 June 2025. So, during that GBC meeting, all the federating units, that is comprising Arunachal Teacher Association, Arunachal Pradesh Doctor Association, Arunachal Pradesh Engineering Service Association, Arunachal Pradesh Civil Service Officer Association, Arunachal Pradesh Veterinary Association, Arunachal Pradesh Stenograph Service Association APSA, Arunachal Pradesh Forest Officer Association, Arunachal Pradesh Junior Engineer Welfare Association, Arunachal Pradesh Child Development and Project Officer Welfare Association, Arunachal Pradesh Range Forester Officer Association, All Arunachal Pradesh State Transport Service Employed Welfare Association, Arunachal Pradesh Technical Teacher Association, Arunachal Pradesh Horticulture Officer Association, Arunachal Pradesh Agriculture Officer Association, Arunachal Pradesh Teacher Educator Association, Arunachal Pradesh Account Service Association, that is जितना Finance and Economic Officer का, Arunachal Food and Civil Supply Officer Association, Directorate Service Association of Arunachal Pradesh, that is DOSA, Arunachal Pradesh Graduate Nurse Association, Arunachal Pradesh Auxiliary Nurse Midwifery Cadre Welfare Association, Arunachal Pradesh Energy Development Agency Employees Forum, Arunachal Pradesh Government Driver Association, Arunachal Pradesh Secretariat Employed Association, जितने भी सेक्रेटरिएट वाला का, सिविल सेक्रेटरिएट का, then Arunachal Pradesh Economics and Statistics Personnels Employed Welfare Association, National Movement for All Pension Systems NMOPS Arunachal Chapter. So कुल मिला के around 25 पेरेंटिंग यूनिट ने पार्टिसिपेंट्स किया था. हालांकि कोसब का अंडर में अराउंड 30 मोर देन 30 पेरेंटिंग यूनिट कोई नहीं आ पाया. उसके साथ में जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को सब भी पार्टिसिपेंट्स किया था उस जनरल बॉडी काउंसिल मीटिंग में 14 जून को. तो उस मीटिंग में जितना भी हम लोग का जीबीसी थे, हम लोग एक यूनिनमस रेजोल्यूशन लेता है. वो यूनिनमस रेजोल्यूशन ये है कि जो 9 जुलाई 2025 को जो नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक कॉल कर रहा है, तो उस नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक को कोसप जो जितना भी अरुणाचल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज का तरफ से हम लोग एक्सटेंशन देगा, सॉलिडेरिटी सपोर्ट करेगा. So by extending our solidarity, we have decided to take participants in that strike in form of dharna. तो उसमें मांग ये है, कुछ पॉइंट, मेजर 5 पॉइंट है. उस 5 पॉइंट का नंबर 1 है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल 8 पे कमीशन. आप सब जानते हैं, जितने भी मीडिया फ्रेंड्स है, आप सब जानता है, या जितना भी व्यूअर्स है, जितना भी एम्प्लॉयड फ्रेटर्निटी जानता है कि हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए एवरी 10 इयर्स में पे कमीशन सेटअप करता है. जो ये सिस्टम शुरुआत किया था 1946 से, तो उस हिसाब से अभी हम लोग का 7 पे कमीशन चल रहा है. तो 8 पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंट विथ इफेक्ट ऑन द 1 जनवरी 2026. तो उस पे कमीशन को दिया जाता है कि गवर्नमेंट कंट्री का इकोनॉमी को देख के, एम्प्लॉयड का जो कंट्री का इकोनॉमिक एंड उसका प्राइस कम्युनिटीज को देख के, और एम्प्लॉयड का सैलरी कितना हमारा ये जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको देख के, एक तो हर 10 साल में रिव्यू किया जाता है और 8 पे कमीशन कंस्टिट्यूट करता है. तो पहले का कंपेयर में अभी तक
पे कमीशन कंस्टिट्यूट हो जाना चाहिए था, क्योंकि पे कमिटी कंस्टिट्यूट करने के बाद में उसमें वर्क स्टडी करना है, स्टेट वाइड स्टडी करना है, तो उसमें काफी समय लगता है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंस्टिट्यूट 8 पे कमीशन बाय प्रायर टू 1 जनवरी 2025, वो हमारा एक एक्सपेक्टेशन था। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पे कमीशन को लेके कोई बात नहीं करता है। जब जब कभी इलेक्शन सामने आता है तो बोलता है कि पे कमीशन कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो आप लोग सब ने देखा होगा कि जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ था उसमें हम लोग का एक तो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि 8 पे कमीशन कंस्टिट्यूट करेगा। देन वी वर इम्प्लाइड entire employees of the country and the state in particular were so happy कि अभी पे कमीशन अनाउंस करेगा, कमिटी कंस्टिट्यूट करेगा, वर्क स्टडी करेगा। बट एज ऑफ नाउ पे कमीशन का कोई कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग कोसब जो है, जो जितना भी जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट जो स्ट्राइक कर रहा है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहा है कि इमीडिएट कंस्टिट्यूशन 8 पे कमीशन के लिए। यह नंबर 1। नंबर 2 में रिपील ऑफ पेंशन PAN Regulatory and Development Authority Act by scrapping the National Pension Scheme and Unified Pension Scheme with direction to PAN managers to recruit or return deposited the amount to the state government by restoring the old pension scheme either in defined pension system में or greater interest of the employed। ये जो एनपीएस को लेके आप सब ने हमेशा ये मुद्दा को आप लोग में देखता है, एम्प्लॉयड का बीच में एक बहुत पुराना मांग है। तो उसमें भी सरकार उसको भी रिव्यू कराया जा रहा है, रिव्यू कर रहा है बोलता है, लेकिन एज ऑफ टुडे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इसका ऊपर में एनपीएस का ऊपर में कोई पॉजिटिव डिस्कशन नहीं करता है। तो उसको रेस्टोरेशन करने का चक्कर में क्या क्या अपना अपना कन्वीनियंस से ये जो पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है कंट्री में, जैसे यूपीएस अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है, और कहीं कहीं आपका स्टेट में जीपीएस कर रहा है, गारंटेड पेंशन स्कीम कर रहा है, और कहीं स्टेट में आरएनपीएस कर रहा है, रिवाइज नेशनल पेंशन स्कीम। तो उसको रेस्टोरेशन करने का चक्कर में घूम फिर के कुछ करता नहीं है। तो इसीलिए जितना भी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन का एक मांग है कि स्ट्रॉन्ग मांग है कि ये जो एनपीएस को स्क्रैप किया जाए और उसको उस एक्ट को रिपील करके, जो पीएफआरडी एक्ट को रिपील करके जितना भी पान मैनेजर है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन साथ में कि जो भी पैसा हमारा एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूट करता है उसको स्टेट गवर्नमेंट का एक्सचेकर में डिपॉजिट किया जाए या रिटर्न किया जाए। और उसी अमेंडमेंट और रिपील के लिए ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन ये 9 जुलाई को एक प्रपोज रहा है नेशन वाइड कंट्री स्ट्राइक, तो उसमें हमारा कोसब भी ज्वाइन करने के लिए डिसाइड किया है। और एक टू है नंबर 3, इमीडिएट रिलीज ऑफ द 18 months पेंडिंग DA ड्यूरिंग द COVID-19 पीरियड व्हिच इज कंस्पिक्यूटेड टिल नाउ। जो COVID-19 जो फैला था देश में, तो उसमें हमारा एम्प्लॉयड इतना प्रॉब्लम फेस किया है। तो उसमें एम्प्लॉयड गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज नॉट सो रेडी कि सडनली ऑल ऑफ ए सडनली लॉकडाउन कर दिया है। कोई उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट ठीक ठाक नहीं था, लैक ऑफ आपका ये जो पीपीई नहीं था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ठीक ठाक नहीं था, इतना मेंटल स्ट्रेस दिया गया है। उसके बाद में जितना भी पोर प्रोन्ट वर्कर्स जो है, स्पेशली डॉक्टर, पुलिस पर्सनल, नर्स एंड पैरामेडिकल्स एंड अदर एम्प्लॉयज, वो लोग जितना भी पोर प्रोन्ट एम्प्लॉय जो अपना लाइफ को रिस्क में डाल के इतना सर्विस दिया है कंट्री को या स्टेट को दिया है, इतना लिमिटेशन में है। उसमें लैक ऑफ प्रिपेयरनेस था, लैक ऑफ इक्विपमेंट था, मेंटल स्ट्रेस हुआ है, उसमें पब्लिक बैकलैश हुआ है, इतना न्यूसेंस क्रिएट हो गया, इतना शाउटिक सिचुएशन हो गया कि हर जगह में एम्प्लॉयड को ही कहीं कहीं मार भी खाना पड़ा एम्प्लॉयड को आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ऑल डिस्पाइट ऑल दोस टफनेस सिचुएशन, इतना तकलीफ समय में भी एम्प्लॉय जो है अपना ड्यूटी को फुल्ली रेस्पॉन्सिबल को डिलीवर किया है। करने के बावजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो
उस पीरियड का 18 मंथ्स का पीरियड को जो देना चाहिए, जो कि एक बेसिक राइट है, एक सैलरी का एक कंपोनेंट है, उसको अभी तक रिलीज नहीं किया है। तो उसको हम लोग सिंस 2000 जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन, उस समय से हम लोग ये जो सरकार का साथ में मांग रख रहा है कि थ्रू ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन कि उसको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। जो भी कंस्पिकेटेड करके रहा है या प्रीज करके रहा है उसको रिलीज किया जाए। तो उसको हमारा वो मुद्दा को जेन्युइनिटी को देखते हुए जितना भी हमारा अरुणाचल का एम्प्लॉयड है डिसाइड किया कि उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेगा बोल के। देन नंबर 4 में आता है रेगुलराइजेशन ऑफ ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एंड स्टॉप ऑफ आउटसोर्सिंग of contractual and contingency employees of the state in particular and country as a whole on the basis of following justification हमारा ये दिया है कि यहाँ देखा है कि इतना कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयड है स्टेट में भी या कंट्री एज ए होल, अपना ऑलमोस्ट यूथफुल एज को और इतना अपना राइट प्राइम टाइम को, लाइफ का एक प्राइम टाइम को सर्विस में दिया जाता है। 10 years, 15 years, 20 years कॉन्टिजेंसी में या कॉन्ट्रेक्चुअल में सरकार का ऑफिस में, वेरियस ऑफिस में, पीएसयू में, ये स्टेट गवर्नमेंट में, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट में इतना एम्प्लॉयड है तो उसका नजरअंदाज कर रहा है। तो इसमें एम्प्लॉयड हमारे इसमें इतना लॉयल्टी है, डेडिकेशन है, डिस्पाइट कि उसका नौकरी अनसर्टेनिटी है, उसका कब रेगुलराइज होगा, लाइफ क्या होगा, इतना अनसर्टेनिटी का सिचुएशन में भी हमारा जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, कॉन्टिजेंसी एम्प्लॉयज अपना लॉयल्टी एंड डेडिकेशन को आज तक करते आया है। उसके बाद में कहीं कहीं ऑफिस में ऐसा है कि कॉन्टिजेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल का एम्प्लॉयड का ही बदौलत कहीं कहीं में चल रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ इन वेरियस एस्टैब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूट। उसके बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयड को कंटिन्यूटी होने से उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, देखने से मिलेगा। उसके बाद अगर उसको कोई भी एम्प्लॉय को अगर देता है तो बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर प्रोसीड्यूर एंड कोडल फॉर्मेलिटीज अगर रेगुलराइज करता है तो उनका जॉब सिक्योरिटी होगा, उसका अपना लाइफ में और टुवर्ड्स देयर वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तो मोटिवेशन होगा। उसके बाद में सोशल इकोनॉमिक एंड जस्टिस प्रिवेल करेगा और अपना इंडिविजुअल लाइफ में फैमिली का जो लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट होगा और इसमें बेटर इंस्टीट्यूशनल एक तो डेवलप होगा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ ओनरशिप एक डेवलप होगा कि हाँ हम एक एम्प्लॉयड है कि ये मेरा ड्यूटी है, मेरा ऑफिस है, मेरा कंट्री है, मेरा स्टेट है, ये मेरा जिम्मेदारी है बोल के एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप फीलिंग होगा और मोरल इथिक ऑब्लिगेशन भी बढ़ेगा उसमें। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म भी ग्रोथ होगा। तो एम्प्लॉय जो भी कंटिजेंसी है या आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, डिस्पाइट ऑल दोज अनसर्टेनिटी स्टिल दे आर गिविंग देयर सर्विस टू द गवर्नमेंट। सो COSAP has decided to request by joining the All India State Government Employees Federations which is being scheduled on in form of strike on the 9 July कि उसको मांग को जेन्युइन है बोल के हम लोग जेन्युइनिटी को देखते हुए हम लोग साथ देने के लिए डिसाइड किया है। उसके बाद में नंबर 5 में है स्टॉप ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड डाउनसाइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। COSAP ये मैटर को लेके COSAP स्ट्रांगली एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद में हम लोग थ्रू GBC मीटिंग में हम लोग ये डिसाइड किया कि ये पॉइंट को भी हम लोग ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का साथ में साथ देगा बोल के। रीजन ये है कि अगर PSU को रोल बोलने से उसका नेशन बिल्डिंग रोल होता है और प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, अगर कॉर्पोरेटाइजेशन करने से ऑल द मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको कॉर्पोरेटाइज किया जाता है वो आपका ये जो प्रॉफिट मेकिंग बेस करके दिया जाता है और नेशन बिल्डिंग में कम ध्यान देता है, ज्यादा ध्यान अपना प्रॉफिट मेकिंग में दिया जाता है। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर यूनिट में अगर ये जो प्राइवेटाइजेशन करने से या कोई ऑफिस को या कोई PSU को करने से मैसिव जॉब लॉस हो जाता है क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, जो मिलना चाहिए था उसमें जॉब नहीं मिल पाता है। उसके बाद में हमारा ये जो स्पेशली कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट से डीलिंग विद द डिफेंस हो गया, ऑयल पावर हो गया, रेलवे हो गया, जो कि बहुत
नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में इतना सेंसिटिव डील करता है, उसको अगर प्राइवेटाइज करने से ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक मेजर थ्रेट है। उसके बाद में जैसे फॉरेन आपका ये जो प्राइवेट को कंट्रोल करता है या हमारा यहाँ आके कंट्रोल करता है प्राइवेट का, कोई भी फॉरेन का प्राइवेट कंपनी आके, तो इस तरह से नेशनल के लिए भी एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है। और ये जो इनएफिशिएंसी इसमें एम्प्लॉयड का जो हमारा अनएम्प्लॉयड का जो सेटलमेंट को नहीं हो पाता है, उसमें ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है। तो ये सबको देखते हुए और उसे बढ़कर स्पेशली जो एससी या एसटी या अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी बोलता है, उसके लिए भी एक तो बहुत मेजर ब्लो होता है। अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट को अगर उसमें भी क्या बोलता है आपका ये जो उसको हटा देता है, पीएसयू प्राइवेटाइज कर देता है, तो उसमें भी हमारा एसटी ओबीसी कैटेगरी को उसमें जॉब का स्कोप को पूरा स्कोप खत्म कर देता है। तो ये सब देखने का बाद में हम लोग कोसत ने डिसाइड किया कि ये 5 पॉइंट ये मेजर को लेके हम लोग ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के साथ में देगा बोल के। तो उसके बाद में और एक पॉइंट है कि ये जो सरकार को हम ये ऑलरेडी हम अभी सबमिट करेंगे, आपको आपके द्वारा हम आगे सरकार को बताना चाहता हूं कि वी आर गोइंग टू सबमिट इट कि सीएसआर को हम लोग अपॉइंटमेंट कोशिश किया लेकिन आज नहीं मिल पाया है, तो अभी हम लोग बात करेंगे, उसे मिलेंगे। तो बिसाइड फ्रॉम दिस ज्वाइनिंग और पार्टिसिपेशन ऑफ द नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक ऑन 9 जुलाई, और एक तो मेजर इशू है जो कोसत बुड्ढा उतारने जा रहा है, ये है कि नंबर 1 ये 14 जून को जो जीबीसी मीटिंग में पहले जो जो ऑर्गेनाइजेशन या फेडरल यूनिट को गिना है, वो सब ने और एक तो मेजर ये जो 3 पॉइंट हम लोग एक तो रेजोल्यूशन पास किया था, वो रेजोल्यूशन है और एक तो नंबर 1 है इमीडिएट रिव्यू एंड द रिकंसिडर ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 33/2/2025 सेक्रेटरीट-1 कंप्यूटर नंबर 219757 डेटेड 21 मई 2025 में। ये अरुणाचल गवर्नमेंट में एक फर्स्ट टाइम ऐसा एक तो ऑर्डर निकलता है जो एआर डिपार्टमेंट का तरफ से कि डीसी को एक पावर डेलीगेट दिया जाता है कि उसको उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर को सस्पेंशन करने के लिए एक पावर डेलीगेट दिया जाता है बाय in the line of the CCA rule 10 clause 1, उसके तहत में ये दिया जाता है कि जो भी 1960 CCA rule 10 of the 1 of the 1965 उसका तहत में दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर को इंपावर करता है कि उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर को सस्पेंशन करने के लिए। तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयड और एपेक्स बॉडी ऑफ द एम्प्लॉयड फैटर्निटी अरुणाचल प्रदेश, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि कहीं कहीं डिसिप्लिन नहीं होता है और ये मिसकंडक्ट होता है ऑफिसर्स का, टू कंटेंट दैट की ये करता है। इफ इट इज सो देन आई और वी एज ए एम्प्लॉयड लीडर ऑफ द एम्प्लॉयड फैटर्निटी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, वी वेलकम सच मूव बाय द गवर्नमेंट बिकॉज अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोस्पेक्ट में बोलने से ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक है। अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है तो हमारा यहाँ में कैपिटल कहाँ बनेगा, सेक्रेटरीट कहाँ बनेगा। डिस्ट्रिक्ट होके वहां से गवर्नमेंट का बिजनेस चल के तभी तो हमारा यहाँ में सेक्रेटरीट बनता है। उस हिसाब से ऑफिसर को डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी है और अच्छा है। उस हिसाब से वी एज ए एम्प्लॉय लीडर वी वेलकम। हाउएवर सबसे एक तो हम लोग का एक तो कंसर्न पॉइंट है कि यहां में लिखता है कि उस ऑर्डर में लिखता है by excluding all India service officers, Arunachal Pradesh civil service officers, Arunachal Pradesh police service officers and Arunachal Pradesh forest officers, ये जो 4 कैटेगरी को एग्जम्प्टेड किया जाता है, एक्सक्लूड करता है। तो मेरा ये कहना है अगर आप लागू करना है, डिसिप्लिन में लाना है, मिसकंडक्ट को और मिसबिहेवियर या जो भी इनडिसिप्लिन को अगर कंटेन करना है तो सबको बराबर में लाइए।
why particular section of the employees is being exempted. They are also serving in the same state, same government, same system. तो हमारा क्यों एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयड को ये जो एग्जेम्प्टेड किया जा रहा है, उसमें इसमें हम लोग बिलीव करता है कि कोसाप हम लोग बिलीव करता है कि ये ऑर्डर जो एक तो डिस्क्रिमिनेटरी है और एक आर्बिट्री ऑर्डर है, एक सिलेक्टिवली टारगेटेड किया जा रहा है कि कर सकता है जो सर्टेन सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज को स्टेट का, डिस्पाइट बीइंग सर्विंग इन द सेम सिस्टम, सेम गवर्नमेंट. Thereby, I feel by issuing this order, it is violating of the constitutional safeguard of under rule article 14, 16 and 13 of the Indian Constitution. वहां में अब क्या बताना है, आप सब जानते हैं. उसका हिसाब में भी एक तो ये जो आपका ये जो अनजस्ट है, ये एक तो आर्बिट्री है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन, एक तो ऑर्डर है, हम सोचता है तो स्ट्रांगली फील दैट. और उसमें उसी रूल का 2000 ये आपका ये जो सॉरी रूल 10(1) का आपका CCA रूल अंडर 10 ऑफ द क्लॉज 1 ऑफ द 1965, वहां में क्या बोलता है, एनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी इन पावर इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नर बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मे प्लेस गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर सस्पेंशन. दिस साइटेशन मस्ट बी रीड टुगेदर. इसमें एक तो इसमें क्लियर कट लिखता है कि अंडर रूल 10 ऑफ द 1 क्लॉज 1 ऑफ द CCA रूल 1965 में ए में लिखता है वेयर ए disciplinary proceeding is contemplated or is pending, where the employee is in the opinion of the authority engaged in activities prejudicial to the interest of the security of the state, or whether a case in respect of the criminal offenses is under investigation, injury or trial. तो उसको इंटरप्रिटेशन करते समय में उस पर्टिकुलर रूल को इंटरप्रिटेशन करके अगर रूल को इम्पोज कर रहा है सब एम्प्लॉयड को अगर बराबर, अगर किसी को कंटेन करने के लिए अगर करता है तो अगेन आई वेलकम सच मूव, बट इक्वल में रहिए, सबको बराबर में रहिए. और मैं सोचता हूं कि ये ऑर्डर इज नथिंग बट इज ट्राइंग टू टारगेट पर्टिकुलर सम सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, और आउट ऑफ दिस ऑर्डर देयर विल बी ए फीलिंग्स ऑफ द इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी अमंग द एम्प्लॉयज. ये एक डेवलप होगा. इसमें हर कोई अपना तरीका से एग्जाम देके आता है, हर कोई अपना तरीका से कैपेबिलिटी से अपना कैलिबर से डिफरेंट सेक्टर में सर्विस में ज्वाइन करता है. कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है. दे विल रिक्रूटेड एज पर देयर कैलिबर, देयर कैपेसिटी. ऐसा नहीं कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं बोल के. व्हाइल वेलकमिंग आई कंडेम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर एंड स्ट्रांगली आर द गवर्नमेंट टू रिव्यू इट इमीडिएटली एंड रिकंसिडर इट. मैं एक सरकार से एक तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उसको आप काइंडली इमीडिएटली रिव्यू कीजिए और उसको रिकंसिडर कीजिए. ये कोसाप प्रेसिडेंट या हम लोग जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अपना मर्जी से नहीं बोल रहे हैं. पहले मैंने जैसे बोला कि 14 जून को इन प्रेजेंस ऑफ द ऑल द more than 25 federating units were there. All their executive or authorized members were there. All district का फेडरल यूनिट का डिस्ट्रिक्ट का जितना भी आया था, तो उन सब का एक ओपिनियन को कॉमन ओपिनियन ड्रॉ करने का बाद में ओनली देयर हैव वी कम हियर टू लेट नो द गवर्नमेंट थ्रू यू कि उसको रिव्यू किया जाए इमीडिएटली और रिकंसिडर किया जाए. उसके बाद में दूसरा पॉइंट है बीपीसी और आउट ऑफ टाउन प्रमोशन मैटर टू मैकेनिज्म द मॉनिटर. ये मैटर को लेके एक साल पहले हम लोग सरकार का साथ में ऑलरेडी बात कर चुका था. वी हैड ए डिटेल डिस्कशन विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड लर्नेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कि उसमें यहां पाया गया है कि गवर्नमेंट का एक क्लियर कट ऑर्डर लिखता है कि मतलब 2017 में एक ऑर्डर लिखता है कि बाय अंडर क्लोज 4 ऑफ द ओएम नंबर AR50 फॉर 2016 15 फरवरी 2017 उस ऑर्डर में ये बोलता है कि टीपीसी साल में दोबारा होना चाहिए. तो उसके लिए मैं सरकार को भी काफी धन्यवाद दिया है कि हम लोग को कंसर्न रखने के लिए कि साल में 2 बार डीपीसी रखने के लिए एक तो हिस्टोरिकल ऑर्डर निकालने के लिए
काफी बार सरकार को मैंने थैंक्स दिया है और हमारा एम्प्लॉय भी बहुत खुश था उस ऑर्डर से। हालांकि ऑर्डर निकलने के बावजूद भी इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स डीपीसी होता ही नहीं है। आफ्टर दैट ऑर्डर I have no hesitation to admit the fact कि after that order some department has proactively taken up the DPC matter, but in certain department उस order को लागू ही नहीं करता है। तो इसलिए लागू नहीं करने का कारण पूछता है तो ऑफिसर डॉक्यूमेंटेशन ठीक तक नहीं देता है, चीफ सेक्रेटरी ओवर हेक्टिक होने का कारण से डीपीसी को पोस्टपोनमेंट टाइम एंड अगेन पोस्टपोनमेंट करता ही बोलता है। तो उसको देखने का बाद में देन हम लोग एक तो स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रहा, ये अभी से नहीं, पिछले 3-4 साल से हम लोग ये ऑब्जर्वेशन करने का बाद में कारण क्या हो सकता है कि टाइमली डीपीसी नहीं होता है, क्या कारण हो सकता है कि डिपार्टमेंट इतना डिले करता है। ये हम लोग को सब ने एक तो अपना तरीका से हर डिपार्टमेंट का ओपिनियन क्रॉस एग्जामिन करने का बाद में हम लोग का ऑब्जर्वेशन पाता है। उस ऑब्जर्वेशन को पाने का साथ में हम लोग ये रखता है कि डीपीसी मीटिंग एलिजिबल ऑफिसर को प्रमोशन नहीं दे सकने, टाइमली नहीं दे सकने का कारण है कि ऑफिसर जो टाइमली डॉक्यूमेंट पाता है और कोई कोई फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है थ्रू आवर ओन एम्प्लॉइज। उसके बाद में एक्सटेंसिव बिजी शेड्यूल ऑफ द लंडन चीफ सेक्रेटरी, तो उसके चलते नहीं हो पाता। तो हम लोग ये एक तो मैकेनिज्म एक तो सजेशन देता है गवर्नमेंट को। तो हम लोग बोलता है कि प्रॉपर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स इन द ऑफिस रिलेटेड टू होल्डिंग डीपीसी, frequent intervention of the political leaders on approach of the best through approach of the vested employees, extensive busy schedule of the learned chief secretary being the chairman of the DPC meeting, all group A posts in leading frequent postponement and department of the DPC meetings. Now, in order to resolve that delay DPC meeting timely and content और OTP को हटाने के लिए हम लोग ये सजेशन देता है कि to appoint a nodal officer, preferably group A in all major departments, to look after and updating the records pertaining DPC method to ensure timely conduct DPC। जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, जैसे PWD हो गया, देयर आर मेजर डिपार्टमेंट्स। उसको हम लोग बोलते हैं एक डेडिकेटेड ऑफिसर उसको अपॉइंटमेंट करो। कोई ऐसा नहीं कि हमारा एम्प्लॉय भी हर कोई सही नहीं है, कोई जानबूझकर अपना डॉक्यूमेंटेशन को ठीक ठाक नहीं देता है, टाइमली नहीं देता है, उसके चलते भी होता है। तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर अपॉइंट करो। हम लोग ने कोसप ने एक सजेशन दिया था। उसके बाद में टू डिस्करेज द पॉलिटिकली बेस्ड इंटरेस्ट अप्रोच ऑफ द ऑफिसर्स, कोई भी ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स अपना प्रमोशन को लेके पॉलिटिकली अप्रोच करता है अपना लीडर को, ये सबको डिस्करेज करना है बोल के। उसके बाद में जब 2001 में एक तो ऑफिस मेमोरेंडम होता है कि लंडन चीफ सेक्रेटरी ही ये जो जितना भी डीपीसी का ये जो चेयरमैन होना है बोल के, तो जैसे ऊपर में दिया है कि एक्सटेंसिव बिजी होने के कारण से डीपीसी बार बार पोस्टपोन होता है। तो हम लोग बोला कि उस ऑर्डर को रिव्यू करो, रिव्यू करके पे मैट्रिक्स 10 एंड एबव को लेके पे मैट्रिक्स 10 एंड एबव, आई मीन पे मैट्रिक्स 11 एंड एबव को चीफ सेक्रेटरी को फाइनल करने दो। उसके बाद पे मैट्रिक्स 10 एंड बिलो को कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, जैसे कमिश्नर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, उसके थ्रू से डीपीसी को फाइनलाइज करने दो।